Good afternoon, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are discussing the anthropology, Indian anthropology, in which we are discussing the growth of Indian anthropology, भारतीय मानव शास्त्र का विकास, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं. As already stated, anthropological studies in India were the offshoot of colonial rule. These were undertaken by the British administrators to enable the rulers to take the stock of their position and to see how it has fared with the people committed to their charge. Risley and Gate, 1903. Drawing our attention to the important landmark in the history of the rise of anthropology in India, Saran and Sinha opine that in some cases anthropological studies were motivated by genuine curiosity about the variety of the different people of India and their exotic customs. A few notable consequences of these studies are worth mentioning. The early anthropological studies were not academic but utilitarian in their nature. The contributors were all foreigners who were studying the cultures of the natives. They were all based in India and did not have direct contact with the academic anthropologists like Tyler, Fraser, and others who were conducting researches at Cambridge, Oxford, and London universities. Thus, their work did not become a part of the British anthropology, which would have been the case had they been inspired by the British academic anthropologist or the Colonial Office in London. This early affiliation of anthropology with government agencies continued even after independence, mostly under the banner of the applied anthropology. Among the earliest Indian anthropologists, the name of the S.C. Roy stands as a colossus. Roy published his first exhaustive monograph on the Munda tribe 1912, Oron 1915, Birhor 1925, Kharia 1937, and many other pioneering works, and was subsequently called father of the Indian ethnology. R.P. Chandra's work on the Indo-Aryan race 1916 also generated a lot of interest, especially among the students of the cultural history of India. It has been a worldwide phenomenon, including India, that the earliest anthropologists were specialists in diverse fields like natural history, medicine, law, etc., and in the systematic study of man. They were merely gifted amateurs. Before moving to the discussion on the establishment of the academic anthropology in India, it will be very significant to describe the image of the earlier anthropologist as cultivated in mind of intelligent of those times, because for those readers not coming from anthropology background, it may help clear some cobwebs of misgivings. In a highly absorbing description, Saran 1983 says that both of the common man and intellectual of the 19th century considered the contemporary anthropologist as eccentrics. This was primarily due to the anthropologist's interest in bizarre and inconsequential things, the so-called liabilities, namely the study of the ornaments, the so-called eccentricity of the pioneering anthropologist and romanticism, which led most of them to take interest in distant places and exotic peoples, have proved to be most advantageous to anthropology. The 19th century anthropologists studied the oddities out of pure interest in them and not to reform the world or to earn a living. Consequently, a sense of detachment and a tradition of relative objectivity have become the distinctive attributes of anthropology since its very inception. Anthropology was dubbed a science of leftovers. Leftovers were many and varied. Therefore, unlike economics and political science, anthropology escaped being stamped with preoccupation stamped with the pro the preoccupation with only one aspect of the life of man. Although it is true that anthropology began with the study of life,
and customs of primitive people. It diversified and included such branches as physical or biological anthropology and prehistoric archaeology, archaeological anthropology, and a vast number of the sub branches and fields of the specialization. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं या जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में मानव विज्ञान का अध्ययन बुनियादी रूप से औपनिवेशिक शासन की देन है। यह कार्य अंग्रेजी प्रशासकों द्वारा शासन की सुविधा के लिए किया गया था, जिससे वे अपनी स्थिति का सही जायजा ले सकें और यह देख सकें कि अपने अधीन जनता के साथ उनका शासन प्रबंध किस सीमा तक सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सका है। ज़िज़ले और गेट के द्वारा 1903 में ऐसा कहा गया था। भारत में मानव विज्ञान की प्रगति की एक विशिष्ट कीर्तिमान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शरण और सिन्हा ने अपना यह मत व्यक्त किया कि भारत के निवासियों की विविधता और उनके अद्भुत एवं अनोखे रीति रिवाजों के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा से भी मानव जीवन संबंधी अध्ययन को प्रेरणा मिली है। प्रारंभिक अध्ययनों की प्रकृति शैक्षिक कम, उपयोगितावादी ज़्यादा थी। उनमें योगदान करने वाले अधिकांशतः वही विदेशी थे जिन्हें मूल निवासियों की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन कार्य सौंपा गया था। ये सभी भारत में काम करने आते थे और ये सभी भारत में काम करते थे और उनका टायलर, फ्रेजर जैसे मानव विज्ञान के उन शैक्षिक विद्वानों से सीधा संपर्क नहीं था जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन आदि विश्वविद्यालयों में इस विषय से संबंधित यानी नृविज्ञान और मानव विज्ञान से संबंधित शोध कार्य में लगे हुए थे। फलस्वरूप उनका कार्य ब्रिटिश मानव विज्ञान का अंग नहीं बन सका। यदि उन्हें ब्रिटेन के शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े मानव शास्त्रियों अथवा लंदन स्थित औपनिवेशिक कार्यालय से प्रेरणा प्राप्त हुई होती तो ऐसा न होता। सरकारी एजेंसियों के साथ मानव विज्ञान की यह संबद्धता व्यवहारिक मानव विज्ञान के नाम से भारत में उसकी आबादी और उसकी आज़ादी के बाद भी जारी रही। भारत में प्रारंभिक मानवशास्त्रियों में एसी राय का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। मुंडा नामक जनजाति पर उनका वृहत सर्वांगीण प्रबंध ग्रंथ मोनोग्राफ 1912 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनके अनेक पथ प्रदर्शक ग्रंथ सामने आए। उदाहरण के लिए ओराओं जनजाति पर 1915 में, बिरहोर जनजाति पर 1925 में और खाड़िया जनजाति पर 1937 में। अनेक अग्रणी ग्रंथों के प्रणेता होने के कारण उन्हें भारतीय नृजाति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन एथनोलॉजी कहा जाता है। इंडो आर्यन जाति पर आरपी चंद्रा के ग्रंथ 1916 ने व्यापक दिलचस्पी पैदा की, विशेष रूप से भारत के सांस्कृतिक इतिहास के विद्यार्थियों में। एक विश्वव्यापी बात जो भारत पर भी लागू होती है यह है कि मानव विज्ञान के प्रारंभिक विद्वान प्राकृतिक इतिहास, औषधि विज्ञान, विधि आदि अनेक विषयों के विशेषज्ञ जरूर थे, किंतु मानव के यथा पद्धति अध्ययन के मामले में उन्हें केवल नैसर्गिक प्रतिभा प्राप्त अनुरागी ही कहा जा सकता है। भारत में शैक्षिक एकेडमिक मानव विज्ञान की स्थापना की चर्चा करने के पहले प्रारंभिक मानवशास्त्रियों की उस छवि के बारे में बताना आवश्यक है जो उस जमाने के बुनियादी वर्ग के मन मस्तिष्क में बसी हुई थी, क्योंकि इससे मानव विज्ञान के विभिन्न पृष्ठभूमि वाले पाठकों को अपनी शंकाओं के मकड़ जाल साफ करने में सहायता मिलेगी। सरण 1983 ने इसका बड़ा ही मनोरंजक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 19वीं शताब्दी में सामान्य जन और बुद्धिवादी दोनों अपने समसामयिक मानवशास्त्री को झक्की या सनकी समझा करते थे। इसका बुनियादी कारण यह था कि मानव विज्ञान के तत्कालीन विद्वानों की दिलचस्पी असंबद्ध और अप्रासंगिक वस्तुओं में अधिक हुआ करती थी। अग्रगामी मानवशास्त्रियों का तथाकथित दायित्व बोध अर्थात अवशिष्ट चीज़ों का अध्ययन, उनका तथाकथित सनकीपन और उनकी वह रूमानियत जो उन्हें सुदूर स्थानों पर जाकर अपरिचित अनजानी वस्तुओं के अध्ययन की ओर आकर्षित करती थी, अंततोगत्वा मानव विज्ञान के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के
मानव शास्त्रियों ने विचित्र और विलक्षण बातों का अध्ययन अपनी विशुद्ध रुचि के कारण किया था, दुनिया में सुधार करने या अपनी जीविका कमाने के लिए नहीं। फलस्वरूप मानव विज्ञान के अध्ययन में उसके प्रारंभ से ही एक वस्तुपरक दृष्टिकोण और सापेक्ष तटस्थता की परंपरा विद्यमान नजर आती है। मानव विज्ञान अवशेष का विज्ञान, साइंस ऑफ लेफ्ट ओवर्स कहा जाता है या कहलाता है। अवशेष अनेक और विभिन्न प्रकार के थे, इसलिए अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से भिन्न मानव विज्ञान मानव के जीवन के केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं रहा। यह सच है कि उसकी शुरुआत आदिम समाज के जीवन और रीति रिवाजों के अध्ययन से हुई, किंतु आगे चलकर उसमें काफ़ी विविधता भी आई। भौतिक यानी जैव, मानव विज्ञान तथा प्रागैतिहासिक पुरातत्व विद्या, पुरातत्वीय मानव विज्ञान आदि उसकी अनेक शाखाओं, उपशाखाओं तथा विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का विकास हुआ। A discipline cannot said to have made its mark until it is accorded recognition as a subject of the teaching and research at the university level. On the academic side, the master's degree had been started at Calcutta University in 1921, and the Department of Sociology at Bombay University started in 1920, had included in its syllabi a fair bit of social anthropology. K.S. Mathur, 1971, says that this was under the inspiration of A.C. Haddon, 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 and W.H.R. Rivers. Calcutta has produced some fine anthropologists. Prominent amongst them were K.P. Chattopadhyay, T.C. Das, D.N. Majumdar, N.K. Bose, and P.C. Biswas. These scholars had done extensive work on the tribes and caste of Eastern and Middle India and produced theory-oriented monographs and papers based upon first-hand field data. Of these, Chattopadhyay, Das, and Bose continued teaching at Calcutta. Majumdar came to Lucknow in 1928 and succeeded in slowly building up a nucleus of anthropology in the Department of Economics. A full-fledged Department of Anthropology was established only in 1951 with Majumdar as first head of the department. This was taught at Calcutta for a while and then came to Delhi, where he built up at the university a department of anthropology with emphasis on physical anthropology. B.S. Guha, with his academic training in anthropology at Harvard, joined government service and became the first director of the Anthropological Survey of India, when it away from the Geological Survey of India in 1946. All of them were after the Calcutta pattern. General anthropologists, though Chattopadhyay, Das, Majumdar, and Bose did more social anthropology, while Guha and Biswas did more physical anthropology. During these decades, two persons stood like colossus. They were S.C. Roy and Warrior Elwin. Both of them were not academically trained anthropologists, but their contributions to Indian anthropology can never be forgotten. Roy was a lawyer by training who, during his stay at Ranchi, developed fascination for the tribal people. Elwin, E-L-W-I-N, Elwin came from England and started as a missionary, but his love for Indian tribal people eclipsed all other considerations. He chose to stay in India even after independence and enjoying full rapport with Jawaharlal Nehru, became the main planner and policymaker vis-a-vis tribal people of India. किसी भी विषय की अपनी पहचान बनना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि उसे विश्वविद्यालय स्तर की शैक्षिक एवं शोध संबंधी मान्यता नहीं प्राप्त होती।
मानव विज्ञान में एमए की डिग्री की व्यवस्था सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1921 में की गई। बम्बई विश्वविद्यालय ने 1920 से अपने समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में सामाजिक मानव विज्ञान सोशल एंथ्रोपोलॉजी को शामिल किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने एससी हेडन और डब्ल्यूएचआर रिवर्स की प्रेरणा से मानव विज्ञान के अनेक उद्भव विद्वान पैदा किए, जिनमें केपी चट्टोपाध्याय, टीसी दास, डीएन मजूमदार, एनके बोस और पीसी विश्वास के नाम उल्लेखनीय हैं। इन मनीषियों ने पूर्वी और मध्य भारत की जनजाति और जातियों का गहरा अध्ययन किया और स्वयं अपने द्वारा संग्रहित सामग्री एवं क्षेत्रीय आंकड़ों पर आधारित अनेक शास्त्रोन्मुख निबंध और प्रबंध लिखे। इनमें से चट्टोपाध्याय और बोस कलकत्ता में अध्यापन कार्य करते थे। मजूमदार 1928 में लखनऊ चले आए और यहाँ के अर्थशास्त्र विभाग में रहते हुए धीरे धीरे मानव विज्ञान में शिक्षण के लिए एक स्वतंत्र और सर्वांगीण विभाग की स्थापना करने में सफल हुए। यह विभाग 1951 में प्रारंभ हुआ और मजूमदार को उसका पहला विभागाध्यक्ष बनाया गया। विश्वास ने थोड़े समय तक कलकत्ता में अध्यापन कार्य किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए। वहीं उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप मानव विज्ञान विभाग की स्थापना हुई, जिसमें शारीरिक मानव विज्ञान फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर विशेष बल दिया गया। बी.एस. गुहा, जिन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का शैक्षिक प्रशिक्षण एकेडमिक ट्रेनिंग प्राप्त किया था, सरकारी नौकरी में चले गए। उनकी नियुक्ति एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम निदेशक के पद पर हुई। यह विभाग 1946 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अलग करके स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया। ऊपर बताए गए सभी विद्वान हालांकि कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैली के अनुगामी थे तथा जनरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फिर भी चट्टोपाध्याय, दास, मजूमदार और बोस ने सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कार्य किया और गुहा एवं विश्वास ने शारीरिक मानव विज्ञान के क्षेत्र में। इन दो दशकों के बीच जो दो व्यक्ति विशेष रूप से उभर कर सामने आए वे थे एस.सी. रॉय और वैरियर एल्विन। ये दोनों शैक्षिक रूप से प्रशिक्षित मानवशास्त्री नहीं थे, फिर भी भारतीय मानव विज्ञान की प्रगति में इन दोनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राय ने वकालत की शिक्षा पाई थी। रांची में अपने प्रवास के दौरान उनमें जनजातियों के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा हुई। एल्विन ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में विलायत से आए हुए थे, किंतु भारतीय जनजातियों के प्रति उनके हार्दिक प्रेम के सामने उनके अन्य सभी कार्य फीके पड़ गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ रहकर लोगों का और जनजातियों के विकास पर लिखना पसंद किया और यहाँ पर रहना पसंद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके गहरे संबंध थे और उन्होंने भारतीय जनजातियों के बारे में भारत सरकार की नीतियों के निर्माण एवं नियोजन कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। धन्यवाद।